Good morning, students. How are you? I hope you all are fine. Students, in today's lecture, I will explain second chapter of Hornbill book, and chapter name is "We Are Not Afraid to Die If We Can All Be Together," written by the writer Gordon Cook and Alan East. Students, before reading the chapter, I want to tell you about the characters. First is narrator. Narrator, he was a married man with two children. He was 37 years old and he was a businessman. He wants to become a famous explorer. Explorer means खोज करता. He was very courageous person and he was very optimistic. Optimistic means hopeful. Second is Mary. Mary, she is wife of narrator. Next is Jonathan. Jonathan, he is 6 years old boy. He is very brave. He is son of narrator. Lovingly, he is called as John. Next is Susan. Susan, she is 7 years old girl and lovingly called Sue. She was a good artist, very brave girl, optimistic and having courage. Next is American Larry Vigil. American Larry Vigil and Swiss Hub Segler. These are two crewmen. ये दोनों ही crewmen हैं. Crewman means नाविक. अमेरिकन लैरी विगिल एंड सेकंड स्विस हब सेगलर. ये दोनों नाविक हैं, क्रूमैन हैं. अब मैं कैरेक्टर्स को रिपीट करना चाहती हूँ. फर्स्ट नरेटर, सेकंड मैरी हिज वाइफ, जोनाथन हिज सन, सुजैन हिज डॉटर, अमेरिकन लैरी विगिल एंड स्विस हब सेगलर. Students, this chapter is a first-person account of an adventurous ordeal. Ordeal means difficulties that a family experiences. Students, through this chapter, the writer wants to convey the message that we should be optimistic in critical situation. We should never give up because ordeals, difficulties are the part of our life. So we should never give up in our difficult situation. We should be always hopeful. Students, in this lecture I will explain this chapter line by line. जो हमारी प्रीवियस वीडियो थी उसमें मैं समरी डिस्कस कर चुकी हूँ, तो अब हम इसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं. स्टूडेंट्स, आपका ध्यान है वो सामने स्क्रीन पे होना चाहिए. स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा, 2 वर्ड्स लिखे हुए हैं. तो चलो अब शुरू करते हैं. इन जुलाई 1976, ये बात कब की है? जुलाई 1976 की है. माई वाइफ मैरी, माई रेफर नरेटर एंड वाइफ नेम मैरी, सन जोनाथन, सन नेम जोनाथन, 6 and he was 6 years old. Daughter Suzanne, daughter name is Suzanne, lovingly called Sue, and she was 7 years old. And I means narrator, set sail from Plymouth. Plymouth, name of a place, England, to duplicate the round the world voyage. Voyage means sea journey, made 200 years earlier by James Cook. अब यहाँ पे ये बताना चाहता है नरेटर कि 200 ईयर्स पहले जेम्स कुक नाम का पर्सन था. वो बहुत ही फेमस एक्सप्लोरर था. उन्होंने सी वोएज में सी जर्नी की थी. उन्हीं की कॉपी करने के लिए, उन्हीं की जर्नी को डुप्लीकेट बनाने के लिए क्या करता है ये, उन्हीं की तरह एक्सप्लोरर बनने के लिए ये भी वोएज करना चाहता है. इसीलिए ये 1976 में उस वोएज के लिए निकल लेता है और ये निकलता है प्लाईमाउथ से. इस जर्नी की स्टार्ट ये कहाँ से करता है? प्लाईमाउथ से करता है ये. फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम मैरी एंड आई एज 37 ईयर्स ओल्ड बिजनेसमैन. यहाँ पे नरेटर ने अपने बारे में बताया हुआ है कि उसकी एज है वो 37 ईयर्स है और ही वॉज ए बिजनेसमैन. हैड ड्रीम्ड ऑफ सेलिंग इन द wake of the famous explorer, and for the past 16 years, past means last 16 years, we had spent all our leisure time means free time, owning means improving our seafaring skills in British waters.
इसीलिए जो नरेटर है वो और उसकी वाइफ वो दोनों लास्ट 16 ईयर से क्या कर रहे हैं, जो ब्रिटिश वोटर है उसमें अपनी जर्नी के लिए जो स्किल चाहिए उनको इम्प्रूव करने की वो कोशिश कर रहा है। मीन्स उनकी प्रैक्टिस है वो कंटिन्यू है। आवर बोट वेवाकर। अब यहाँ पे जिस बोट का वो जर्नी में यूज करते हैं उस बोट के बारे में बताया हुआ है, एंड नेम ऑफ दैट बोट इज वेवाकर। अब ये पर्टिकुलर क्वेश्चन बनता है वेवाकर के बारे में, तो उसका यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि वेवाकर एट 23 मीटर, लेंथ में कितना है वो 23 मीटर है, वेट 30 टन, वुडन हल्ड ब्यूटी। और ये किसका बना हुआ है, वुड लकड़ी का बना हुआ है ये बोट। हैड बीन प्रोफेशनली बिल्ट, और इसको बहुत ही प्रोफेशनली वे से बनाया गया है। एंड वी हैड स्पेंट मंथ्स फिटिंग इट आउट एंड टेस्टिंग इट इन द रफेस्ट वेदर वी कुड फाउंड। और वो क्या करते हैं, जितना रफ वेदर उन्हें मिलता है उतने रफ वेदर में वो उसको इसकी टेस्टिंग करते हैं कि जर्नी टाइम में कितने स्टॉर्म्स को कितना कुछ वो टॉलरेट कर सकता है, इसकी वो टेस्टिंग पहले से कर लेते हैं कि ये कैसा बना है। द फर्स्ट लेग, हियर लेग मीन्स फेज चरण। द फर्स्ट लेग ऑफ आवर प्लान्ड 3 ईयर 1,500,000 किलोमीटर जर्नी passed pleasantly as we sailed down the west coast of अफ्रीका टू केप टाउन। अब यहाँ पे उनकी जर्नी का जो फर्स्ट लेग है वो बहुत ही प्लीजेंटली पास हो गया है। और वो जो फर्स्ट लेग था वो कितने का था, वो 1,05,000 किलोमीटर का था। और उन्होंने वो फर्स्ट फेज है वो बहुत ही आराम से क्रॉस कर लिया है। देयर बिफोर हेडिंग ईस्ट, अब फर्स्ट लेग कवर होने के बाद वो ईस्ट साइड की ओर जाते हैं। और वहाँ जाने से पहले वी टुक ऑन क्रूमैन, वो 2 क्रूमैन को साथ लेते हैं। क्रूमैन मीन्स नाविक। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि जो नरेटर है वो 2 क्रूमैन को अपने साथ क्यों लेते हैं, उसका आंसर यहाँ पे है कि अमेरिकन लैरी विगिल, यहाँ पे उनके नेम है। फर्स्ट है अमेरिकन लैरी विगिल एंड स्विस हब सेगलर, दीज आर 2 क्रूमैन टू हेल्प अस टैकल, टैकल मीन्स फेस सामना करना, वन ऑफ द वर्ल्ड्स रफेस्ट सी, द सदर्न इंडियन ओशियन। सदर्न इंडियन ओशियन है वो वर्ल्ड का सबसे रफेस्ट ओशियन है। और उसको टैकल करने के लिए नरेटर क्या करता है, उन 2 क्रूमैन को अपने साथ लेता है ताकि वो उसको उस वेदर को वो टैकल कर सके। On our second day out of Cape Town, we began to encounter means face सामना करना, storm gales। अब केप टाउन से बाहर निकले हुए उन्हें सेकेंड डे था, उस दिन वो बहुत तेज हवाओं का सामना करते हैं। गेल्स मीन्स विंड्स। फॉर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स दे ब्ल्यू कंटिन्यूसली, और नेक्स्ट कुछ डेज तक ऐसी ही जो स्ट्रॉन्ग गेल्स हैं वो कंटिन्यू रहती हैं। गेल्स डिडंट वरी मी, लेकिन नरेटर है वो उन गेल्स से नहीं डरता है, गेल्स उसको वरी नहीं कर पाती हैं। बट उसको वरी करती है वो चीज़ क्या है, बट द साइज ऑफ द वेव्स वॉज अलार्मिंग, अलार्मिंग मीन्स डेंजर्स। लेकिन जो वेव्स थी, लहरें थी, उनका जो साइज था वो बहुत ही डेंजरस था। अप टू 15 मीटर्स मीन्स जो लहरों का जो साइज था वो कहाँ तक था, वो 15 मीटर तक था। एज हाई एज आवर मेन मास्ट, उनकी जो हाइट है वो कहाँ तक जा रही थी, उनका जो मेन मास्ट होता है वहाँ तक उन वेव्स की हाइट थी, मीन्स उनकी हाइट बहुत ज़्यादा थी। December 25 found us 3,500 किलोमीटर ईस्ट ऑफ केप टाउन। अब दिसंबर 25 तक क्या होता है कि वो केप टाउन से 3,005 किलोमीटर पूर्व में ईस्ट में वो जा चुके थे। डेस्पाइट एस्ट्रोसियस वेदर, एस्ट्रोसियस मीन्स नॉट गुड, बैड। जो वेदर था वो प्लीजेंट नहीं था उनके लिए, बिल्कुल भी उनके फेवर में नहीं था। उसके बाद भी वी हैड ए वंडरफुल हॉलीडे कंप्लीट विद ए क्रिसमस ट्री, उसके बाद भी वो क्रिसमस जो फेस्टिवल आता है 25 दिसंबर को, उसको सेलिब्रेट करते हैं उसी वर्स वेदर में। न्यू ईयर्स डे सा नो इम्प्रूवमेंट, न्यू ईयर को भी कोई इम्प्रूवमेंट नहीं होता। बट वी रीजनड दैट, हेयर रीजनड मीन्स गेस्ड, पहले से आइडिया लगा लेना
वी रीजनड दैट इट हैड टू चेंज सून, लेकिन वो सारे अपनी शिप में आइडिया लगा लेते हैं कि वेदर बहुत जल्दी चेंज होगा, ठीक हो जाएगा। एंड इट डिड, वेदर चेंज हुआ फॉर द वर्स, लेकिन कैसा हुआ, पहले से भी बेकार हो गया। एट डन और January 2, डन मीन्स अर्ली मॉर्निंग। अब पहले डेट कौन सी थी, 25 दिसंबर। 25 दिसंबर को क्या हुआ था, वेदर था वो कंफर्टेबल नहीं था, वो वर्स था। उसी वेदर में वो क्रिसमस ट्री सेलिब्रेट करते हैं, वो न्यू ईयर भी वैसे वेदर में सेलिब्रेट करते हैं, और न्यू ईयर को जो वेदर है वो भी वर्स हो गया। अब डेट है 2 जैन। बच्चों इस चैप्टर को डेट से याद करना है कि 25 को क्या हुआ था, 1 को क्या हुआ था, 2 को क्या हुआ था, तो इसको डेट से याद करना है। अब 2 जैन को क्या होता है, द वेव्स वर जिजेंटिक, मीन्स ह्यूज, जो वेव्स थी वो बहुत ज़्यादा बड़ी थी। वी वर सेलिंग विद ओनली ए स्मॉल स्टॉर्म जिब एंड वी वर स्टिल मेकिंग 8 नोट्स, कि जो वेदर था वो रफ तो था ही, और उस स्टॉर्मी वेदर में क्या करते हैं, जब वो जर्नी कर रहे थे उस टाइम पे उनके पास एक स्मॉल जिब था। जिब मीन्स सी सेल, मीन्स ए स्मॉल सेल, जिसको बोलते हैं छोटा पाल। अब उनके पास एक छोटा पाल था, जिब था, और उसी पाल के साथ वो जो नोट्स मतलब होता है कि सी माइल्स, वो 8 सी माइल्स की स्पीड से वो जा रहे थे। उनकी स्पीड थी वो क्या थी, वो थी जो नोट्स होते हैं उनको हम जो सी में जो स्पीड होती है उसको हम नोट से मेज़र करते हैं, तो उनकी स्पीड थी वो 8 नोट की थी। ओके बच्चों, आगे हैं। एज द शिप रोज टू द टॉप ऑफ ईच वेव वी कुड सी एंडलेस इनॉर्मस सीज रोलिंग टुवर्ड्स अस एंड द स्क्रीमिंग ऑफ द विंड एंड स्प्रे आवर पेनफुल टू द ईयर्स। और जब भी वेव जाती है तो उनकी शिप है वो उस वेव्स के ऊपर चढ़ जाती है, और जब शिप ऊपर जाती है तो उस टाइम पर देखते हैं कि जो सी है वो बहुत ही वास्ट है, दूर तक उस सी को वो देख सकते हैं, और बहुत ही स्टॉर्मी है। और जो स्प्रे है, स्प्रे मीन्स बौछार है, वो उनके ईयर्स के लिए बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है, वो बहुत ही पेनफुल लग रही है। टू स्लो द बोट डाउन वी ड्रॉप द स्टॉर्म जिप, अपनी स्पीड को कम करने के लिए वो क्या करते हैं, स्टॉर्म जिप को वो गिरा देते हैं। एंड लेस्ट मीन्स टाइड, एंड टाइड ए हैवी मूरिंग रोप, और वो हैविंग मूरिंग रोप मीन्स जो सेफ्टी रोप होती है उसको बोला गया है मूरिंग रोप। इन ए लूप, लूप मीन्स रिंग शेप्ड फास्टनिंग, रिंग की शेप में बांध देना, जिसको फंदा बोल सकते हैं हम यहाँ पे। अक्रॉस द स्टर्न मीन्स बैक एंड ऑफ द शिप, और वो क्या करते हैं, शिप के बैक एंड से एक जो रोप है वो टाई कर देते हैं। देन वी डबल्ड लेस मीन्स दोहरा बांध देना। एवरीथिंग वेंट थ्रू आवर लाइफ रेफ्ट, फिर वो हर चीज़ को दोबारा से बांध देते हैं। उसके अलावा आवर लाइफ रेफ्ट मीन्स बोट, जो उनकी लाइफ रेफ्ट बोट होती है कौन सी, बेवाकर। ड्रिल अटैच लाइफ लाइन, उससे हम अपनी लाइफ लाइन अटैच कर लेते हैं, रस्सियाँ बांध लेते हैं। डंड मीन्स पुट ऑन। ऑयल स्किन मीन्स वाटर प्रूफ कवरिंग। एंड लाइफ जैकेट्स एंड वेटेड, वो अपनी सेफ्टी कर लेते हैं अच्छे से, अपनी जो रस्सियाँ वो बांध लेते हैं, अपनी जैकेट वो पहन लेते हैं जो कि वाटरप्रूफ होते हैं, और उसके बाद वो वेट करना शुरू करते हैं। वेट किसका, वेदर का वेट करना शुरू करते हैं कि वेदर कैसा होगा। द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ इम्पेंडिंग में मीन्स इमिनेंट डिजास्टर केम एट अबाउट 6 PM, कि जो डिजास्टर था उसका जो फर्स्ट इंडिकेशन है वो कब आया, 6 PM को। डेट कौन सी है, 2 जैन चल रही है। विद एन ओमिनियस साइलेंस, ओमिनियस मीन्स एविल, बेकार, साइलेंस मीन्स सब कुछ साइलेंट हो गया। द विंड ड्रॉप्ड, हवा एकदम से रुक गई। एंड द स्काई इमिडिएटली ग्रीव डार्क, स्काई है वो बिल्कुल ही डार्क हो गया। देन केम ए ग्रोलिंग रोल, तभी जोर से आवाज होती है। एंड एन इनॉर्मस क्लाउड टावर्ड एफ्ट मीन्स केम ओवर, छा जाना। ऑफ द शिप, और तभी शिप के ऊपर एक काला बादल है वो छा जाता है, बहुत बड़ा बादल है वो छा जाता है। विद हॉरर आई रियलाइज्ड दैट इट वॉज नॉट ए क्लाउड,
और डर से नाइटर इस बात को रियलाइज करता है कि ये कोई क्लाउड नहीं है बट ए वेव, लेकिन ये क्या है, ये एक वेव है, कोई लहर है, लाइक नो अदर, बाकी सब की तरह नहीं है ये। आई हैड इवन सीन, अब तक नाइटर ने जो भी लहरें देखी हैं ये उन सब से डिफरेंट है। इट अपीयर्ड परफेक्टली वर्टिकल, क्योंकि ये कैसे थी, बिल्कुल ही वर्टिकल थी, एंड ऑलमोस्ट ट्वाइस द हाइट ऑफ द अदर वेव्स, और जो बाकी की वेव्स थी उनकी हाइट से इसकी हाइट डबल थी। विद ए फ्राइटफुल ब्रेकिंग क्रेस्ट, क्रेस्ट मीन्स टॉप, और इसकी टॉप कैसी थी, बहुत ही फियरफुल थी, डरावनी थी। द रोर इंक्रीज टू ए थंडर एज द स्टन मूव्ड अप द फेस ऑफ द वेव, एंड फॉर ए मोमेंट आई थॉट वी माइट राइड ओवर इट, तभी एकदम से आवाज़ होती है और ये जो बोट है उसका पिछला जो पार्ट है वो वेव के साथ ऊपर उठ जाता है, और कुछ टाइम के लिए नाइटर को ऐसे लगा जैसे कि जो बोट है वो वेव के ऊपर ही चढ़ जाएगी। बट देन इट ट्रेमडस, ट्रेमडस मीन्स ग्रेट, एक्सप्लोजन, एक्सप्लोजन मीन्स नॉइज, सुक द डेक, डेक मीन्स रूफ ऑफ द शिप, तभी एक बहुत जोर से आवाज़ होती है और जो डेक है वो हिल जाता है। ए टोरेंट ऑफ ग्रीन एंड वाइट वाटर, टोरेंट मीन्स धारा, ए टोरेंट ऑफ ग्रीन एंड वाइट वाटर ब्रोक ओवर द शिप, तभी क्या होता है कि जो वाइट और ग्रीन वाटर है वो शिप में आना शुरू हो जाता है। माई हैड स्मैश्ड इन टू द व्हील, स्मैश मीन्स टकराना, नाइटर का जो हेड है वो व्हील से टकराता है। एंड आई वॉज अवेयर ऑफ फ्लाइंग ओवरबोर्ड एंड सिंकिंग बिलो द वेव्स, और जो नाइटर है वो क्या करता है कि जो पानी की जो जहाज है बोट वेवाकर उसमें वो घूमना शुरू हो जाता है, मीन्स वो अब गिरना शुरू हो गया है वो। आई एक्सेप्टेड माई अप्रोचिंग डेथ, वो लगभग दिवाकर से बाहर निकल गया है और वो इस बात को एक्सेप्ट कर लेता है कि उसकी डेथ है वो आने वाली है, वो मरने वाला है अब। एंड एज आई वॉज लूजिंग कॉन्शियसनेस, वो लगभग बेहोश होने वाला है। आई फेल्ट क्वाइट पीसफुल, अब वो बिल्कुल पीस हो गया, बिल्कुल शांत हो गया, क्योंकि जब हम बेहोश होने वाले होते हैं, मरने वाले होते हैं, उस टाइम पे बिल्कुल ही शांत हो जाते हैं। तो नेट्री के साथ भी ऐसा ही होता है, वो बोट से बाहर निकल गया है, वो बिल्कुल वो शांत हो गया, उसे ऐसे लगता है कि अब वो मरेगा। अनएक्सपेक्टेडली माई हैड पोप्ड आउट, पोप्ड आउट मीन्स मूड आउट ऑफ द वाटर, तभी उसका जो हेड है वो पानी से बाहर निकलता है। ए फ्यू मीटर्स अवे वेवाकर वॉज नियर कैप्साइजिंग, कैप्साइजिंग मीन्स सिंकिंग। हर मास्ट ऑलमोस्ट होरिजेंटल, वो देखते हैं कि कुछ मीटर की डिस्टेंस पे बेवाकर है वो होरिजेंटल हो गया है। देन ए वेव हर्ल्ड, हर्ल्ड मीन्स थ्री अवे, हर अपराइट, तभी एक वेव आती है और वेवाकर वो सीधी कर देती है, होरिजेंटल हो गई थी उसको वो सीधी कर देती है। माई लाइफ लाइन जर्क, जर्क मीन्स झटका लगना, और जैसे ही वेवाकर सीधा होता है तो जो नेट्री की जो लाइफ लाइन बंधी हुई थी, रस्सी थी, वो भी एकदम से टाइट हो जाती है। जर्क टोट, टोट मीन्स टाइट। आई ग्रैब्ड द गार्ड रेल्स, ग्रैब्ड मीन्स कोट, पकड़ना, द गार्ड रेल्स एंड सेल्ड थ्रू द एयर इनटू द वेवाकर मेन बूम, बूम मीन्स बार, और वो वेवाकर का जो मेन बूम होता है, मेन बार होता है, उसके पास लगभग वो आ जाता है। सब्सिक्वेंट वेव्स टोस्ट मी अराउंड द डेक, जो वेव्स हैं वो उसको कहाँ फेंक देती हैं, वो उसको डेक के पास फेंक देती हैं। लाइक ए रैग डोल, किसकी तरह, जैसे कि कपड़े की डोल होती है, गुड़िया होती है, उसकी तरह जो वेव्स होती है वो नरेटर को उस डेक के पास फेंक देती है। माई लेफ्ट रिब्स क्रैक, उसकी लेफ्ट रिब है वो क्रैक हो जाती है। माई माउथ फिल्ड विद ब्लड एंड ब्रोकन टीथ, somehow I found the wheel, lined up the stern for the next waves and hung on, अब वो कुछ देर के लिए उस व्हील को अपने स्पोर्ट के लिए वो पकड़े रखता है। वाटर वाटर एवरीवेयर, आई कुड फील दैट द शिप हैड वाटर बिलो, हर जगह पानी पानी था, और नाइटर को ये पता चल चुका है, उसने देख लिया है कि जहाज के नीचे भी क्या था, पानी था, मीन्स जहाज में पानी एंट्री कर चुका है। बट आई डेयर नॉट अबेंडन द व्हील टू इन्वेस्टिगेट, लेकिन वो
उस व्हील को नहीं छोड़ता, किस लिए? इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। अगर वो व्हील को छोड़ेगा इन्वेस्टिगेशन के लिए तो ऑब्वियसली वो डूब जाएगा। इसलिए उसे ऐसा लगता है कि जो बोट है उसे पानी आ चुका है, लेकिन वो इन्वेस्टिगेशन करने के लिए व्हील को नहीं छोड़ता, वो उसको पकड़े रखता है। Suddenly, the front hatch was thrown open. Front hatch means door, was thrown open. तभी एकदम से जो सामने का डोर है वो ओपन होता है। एंड मैरी अपीयर्ड, और सामने मैरी होती है। मैरी हिज वाइफ। वी आर सिंकिंग, सी क्रीम्ड, सी क्राइड, वो ये कहते हैं कि हम डूब रहे हैं। द डैक्स आर स्मैश्ड, जो डैक हैं वो स्मैश हो रहे हैं। वी आर फुल ऑफ वाटर, हर जगह पानी पानी है। टेक द व्हील, आई साउटेड एज आई स्क्रैम्बल्ड फॉर द हैच, वही उसको बोलता है कि जो व्हील है उसको अपनी स्पोर्ट के लिए पकड़ लो, वो चिल्लाता है दूर से ही। लैरी एंड हब वर पंपिंग लाइक मैडमैन, लैरी और हर्ब जो कि दो क्रूमैन हैं वो पागलों की तरह पंपिंग कर रहे हैं, मीन्स वो पंपिंग करके पानी को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ब्रोकन टिम्बर्स हंग एट द क्रेजी एंगल्स, और जो लकड़ियाँ टूट गई हैं वो बिल्कुल ही दाएं बाएं बिखरी हुई हैं। द वोल स्टारबोर्ड साइड बर्ग्ड इनवर्ड, बर्ग मीन्स धस जाना, और जो बाहर का पोर्शन है वो अंदर की ओर धस गया है। क्लोथ, क्रोकरी, चार्ट, टीन्स एंड टॉयज स्लोस्ड अबाउट इन द डीप वाटर, वही सारा सामान है बच्चों के जो टॉयज हैं, क्लोथ्स है, क्रोकरी है, उनके लिए टीन है, उनका फूड होता है, वो सब कुछ पानी में बह रहा था। आई हाफ स्वैम हाफ क्रॉल्ड इनटू द चिल्ड्रंस कैबिन, नरेटर है वो आधा तैरकर और आधा लगभग रेंगकर वैसे जल्दबाजी में वो बच्चों के कैबिन में जाता है। आर यू ऑल राइट, आई आस्क्ड, और बच्चों से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो? यस दे आंसर्ड फ्रॉम एन अपर बंक, बंक मीन्स बर्थ सीट, वो ऊपर की सीट से आंसर देते हैं कि हाँ वो ठीक है। बट माई हेड हर्ट्स ए बिट, सैड शू, शू मीन्स सुजैन, सुजैन कहते हैं कि हाँ उसका जो हेड है वहाँ पे कुछ चोट लगी हुई है। सी पॉइंटिंग टू ए बिग बम्प, बम्प होता है कि जब लगती है तो जो हमारा जो पार्ट थोड़ा सा स्वेलिंग आ जाती है, जो बाहर निकल के आ जाता है, उसको यहाँ पे बम्प बोला गया है, मीन्स घूमड। वो बम्प की ओर इशारा करके कहती है कि उसके सिर में थोड़ी सी लगी है, जबकि उसको बहुत ज़्यादा लगी हुई थी। आई हैड नो टाइम टू वरी अबाउट बम्प्ड हेड्स, नाइटर के पास उस बम्प्ड हेड को देखने के लिए टाइम नहीं था। आफ्टर फाइंडिंग ए हैमर स्क्रीव्स एंड कैनवास, कैनवास होता है मोटा कपड़ा जिसको हम त्रिपाल बोलते हैं, एंड ए सिक्योर वाटरप्रूफ हैच कवर्स एक्रॉस द गैपिंग होल्स, वो क्या करता है नाइटर कि वो सामान लेता है जिसमें स्क्रीव होता है, हैमर होते हैं, और इन सब की हेल्प से वो वापस डेक पे जाता है। विद द स्टारबोर्ड साइड बेस्ट ओपन वी वर टेकिंग वाटर विद ईच वेव्स दैट ब्रोक ओवर अस, और जो भी वेव्स आ रही थी हर वेव्स के साथ पानी है वो अंदर बोट में आ रहा था। इफ़ आई कुडेंट मेक सम रिपेयर्स वी वुड श्योरली सिंक, अब नेटर ये कहता है कि यदि नेटर ऐसा नहीं करता, कुछ अरेंजमेंट नहीं करता हैमर की हेल्प से, स्क्रीव की हेल्प से, तो डेफिनेटली क्या होता, वो डूब ही जाते। तो बच्चों आज की वीडियो में इतना ही है, चैप्टर को पढ़ के देखना है, कहीं से कुछ समझ में नहीं आए तो मुझसे पूछ लेना। और बच्चों टाइम वेस्ट नहीं करना है, ये बहुत ही क्रूशियल टाइम है, तो आप ये मत सोचना कि हम घर पे हैं पढ़ाई नहीं करेंगे, नहीं बच्चों पढ़ाई करनी है रेगुलर बेस पे, क्योंकि एक बार ये टाइम चला जाएगा तो दोबारा वापस नहीं आएगा। इसलिए बच्चों बहुत ही ईमानदारी से अपना काम करना है, बिल्कुल ये मत सोचना कि स्कूल नहीं जा रहे हैं तो हम नहीं पढ़ेंगे। नो, अपना काम बहुत अच्छे से, जितना टाइम आप स्कूल में देते थे कम से कम बेटा इतना टाइम घर पे देना है, ताकि आपकी स्टडी है वो स्मूथली चल सके। अगर ऐसा नहीं करोगे तो बाद में आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, आप पीछे रह जाओगे। तो अपना काम है वो प्रॉपरली टाइम टेबल के अकॉर्डिंग करना है, बिल्कुल भी टाइम पास करने की मत सोचना। ठीक है बच्चों।